Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now let's study life cycle of a silk moth. अब हम लाइफ साइकिल सिल्क मोथ की पढ़ेंगे. The following are the stages of the life cycle of silk moth. निम्न स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल सिल्क मोथ के. The silk moth have unique life cycles. Their life cycle consists of 4 stages: egg, larva, caterpillar and silkworm. Third stage, pupa, cocoon or chrysalis. Fourth, silkworm or butterfly. First stage, egg. Silk moth lays hundreds of eggs in neat rows. They may be round like balls or flat like pancakes. And female moth lays many tiny eggs. सिल्क मोथ जो है 100 एग लेस करती है रोज़ में. वो चाहे राउंड बॉल जैसे हो या पैनकेक जैसे होते हैं. और फीमेल मोथ जो हो टाइनी एग्स ले करती हैं. सेकेंड स्टेज, लार्वल स्टेज. The caterpillar or silkworm that emerges from the egg is only about an eighth of an inch long and covered in hair. The caterpillar feeds on the mulberry leaves, going through 4 separate molds as it matures towards the pupa stage. As it molts, the old skin is shed and a new larger one is grown. After first mold, the silkworm loses its hairy exterior and remains smooth and soft throughout this stage of its life. कैटरपिलर या सिल्कवर्म एग में से निकलता है. ये 8 इंच लॉन्ग होता है और हेयर से कवर्ड होता है. कैटरपिलर मलबरी लीव्स को खाता है और फिर सेपरेट हो जाता है, प्यूपा स्टेज में चला जाता है. इसकी ओल्ड स्किन जो है वो शेड हो जाती है और ये थोड़ा बड़ा हो जाता है. ये थ्रू आउट ये स्टेज स्मूथ और सॉफ्ट ही रहता है. Here in this picture you can see that eggs hatch into larvae and caterpillars that are silkworms. Caterpillars feed on mulberry leaves and grow in size over 3 to 4 weeks. The caterpillar shed its skins 4 times during this phase as it grows bigger in size. This process is called molting. ये लार्वा स्टेज में आप देख सकते हैं कि एग हैच होके लार्वे और कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है. कैटरपिलर मलबरी लीव्स को खाते हैं और 3 और 4 वीक्स में ग्रो हो जाते हैं. कैटरपिलर इस स्टेज में 4 टाइम्स अपनी स्किन को शेड करते हैं और बिगर साइज में हो जाते हैं. इस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहते हैं. Third stage is pupal stage. The caterpillar spins a chrysalis. The silkworm spins a cocoon. The pupa changes into moth. The moth comes out of the cocoon. यहाँ पे एक बार कैटरपिलर मैच्योर हो जाता है तो फीडिंग बंद कर देता है और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. प्यूपा एक थिन कॉन्टिन्यूस फिलामेंट सिक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड से और ये सब्सटेंस प्रोटीन से बना हुआ होता है और जो एयर में हार्ड हो जाता है. प्यूपा उसका हेड जो है साइड टू साइड फॉर्म करता है, फिगर को स्पिन आउट करता है एक केस सिल्क फाइबर का जिसको हम कोकून कहते हैं. कोकून का कलर डिपेंड करता है कि सिल्क वॉर्म क्या खाता है. फोर्थ स्टेज इज एडल्ट स्टेज. The silkworm hatches from its cocoon into a silk moth. फोर्थ स्टेज है, उसको हम एडल्ट स्टेज भी बोलते हैं. यहाँ पे सिल्कवर्म हैच आउट होता है कोकून से
और सिल्क मॉथ बन जाता है। प्यूपा जो है कंटिन्यूस डेवलप करता रहता है कोकून के अंदर अबाउट 15 डेज और फिर ग्रो हो जाता है मॉथ में। फाइनली ये फुली फॉर्म होके जो मॉथ है वो कोकून से बाहर आ जाता है और इसकी लाइफ स्पैन जो एडल्ट की होती है वो 3 से 10 दिन तक की होती है। सेरीकल्चर। Sericulture or silk farming is the rearing of silkworms for the production of raw silk. Bombyx mori is the most widely used species of silkworm and intensively studied. Stages of production of silk. The silk moth lays eggs. The eggs hatch and the larvae feed on mulberry leaves. When silkworms are about 10,000 times heavier than what they hatched, they are ready to spin a silk cocoon. The silk is produced in 2 glands in the silkworm's head and then forced out in liquid form through opening called speranends. सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग सिल्क वॉर्म के प्रोडक्शन को कहा गया है। बॉम्बैक्स मोरी स्पीशीज़ है जो ज़्यादा यूज़ की जाती है सिल्क प्रोडक्शन के लिए। स्टेजेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन नंबर 1 में सिल्क मॉथ जो है एग्स ले करती है, एग्स हैच आउट हो जाते हैं और लार्वा जो होता है वो मलबरी लीव्स को खाता है। जब 10,000 टाइम्स हेवियर हो जाता है तभी वो स्पिन करने के लिए तैयार होते हैं, सिल्क को स्पिन करते हैं कोकून फॉर्म में और सिल्क जो प्रोड्यूस होती है वो 2 ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है जो हेड में होती है और बाद में वो फोर्स आउट हो जाते हैं ओपनिंग्स के थ्रू बाहर निकलने के लिए। उन ओपनिंग्स को स्पिनेंड्स बोला जाता है। Silk is extracted and processed from cocoon in following ways. Filature operation. Cocoons are delivered to factory called filature for different process to unwind the silk. The different operations are as follows. Sorting cocoons, softening the sarracen, reeling the filament. Sorting cocoons is the process in which cocoons are first sorted according to color, size, shape and texture. Cocoon from the China are white, Japanese cocoons are creamy white and yellow and Italian cocoon. सिल्क को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोकून से? फॉलोइंग वेज में कोकून्स को डिलीवर कर दिया जाता है फैक्ट्री में जिसको बोलते हैं फिलेचर और डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। ऑपरेशंस में नंबर 1 है सॉर्टिंग कोकून्स जिसमें सॉर्ट आउट करते हैं कोकून्स को कलर, शेप और साइज़ और टेक्सचर के हिसाब से। सॉफ्टनिंग द सेरेसिन को सॉफ्ट किया जाता है। जो कोकून जो चाइना का है वो वाइट कलर में होता है, जापानीज़ का क्रीमी वाइट और इटालियन कोकून येलो कलर में पाया जाता है। सॉफ्टनिंग द सेरेसिन is the process in which cocoons are heated in boiling water to soften the gummy substance that holds the cocoon filament. Raw silk consists of about 80% fibron and 20% sericin. नेक्स्ट स्टेप है सॉफ्टनिंग की जाती है सेरेसिन से। इस प्रोसेस में कोकून्स को बॉईल किया जाता है वाटर में ताकि उसका जो गमी सब्सटेंस है वो छूट जाए कोकून फिलामेंट से। रॉ सिल्क में 80% फेब्रॉन होता है और 20% सेरेसिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप इज रीलिंग। रीलिंग द फिलामेंट इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द फिलामेंट फ्रॉम द कोकून। सिल्क filaments are unwound in the reel and combined together to make thread of raw silk. The filaments from 4 to 8 cocoons are joined. The resulting is called raw silk, which is consist usually of 48 individual silk fiber. The sericin acts as adhesive in holding the several filaments
The length of the reel filament is approximately a quarter of mile long. Next है रीलिंग। फिलामेंट की रीलिंग की जाती है। इस प्रोसेस में अनवाइंडिंग किया जाता है फिलामेंट का जो कोकून से निकलता है, और इसमें इस फिलामेंट में कम से कम 4 से 8 कोकून्स ज्वाइन होते हैं, और इसका जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम रॉ सिल्क बोलते हैं, जिसमें 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर प्रेजेंट होते हैं। सेरेसिन जो है वो एडिसिव का काम करती है, सेवरल फिलामेंट्स को होल्ड करके रखती है, और जो लेंथ है रील्ड फिलामेंट की अप्रोक्सीमेटली क्वार्टर माइल लॉन्ग होती है। नेक्स्ट स्टेप इज थ्रोइंग प्रोसेस। Twisting one or more threads of raw silk into a strand sufficiently strong for weaving or knitting. Raw silk skeins are sorted according to size, color, and length or quality. It is then soaked in warm water with soap and oil. After mechanical drying, the skeins are wound on bobbins. During this winding, single strands may be given any desired amount of twist. If 2 or more yarns are to be doubled, they are twisted again in the same direction. Next process है throwing process। इसमें ट्विस्टिंग की जाती है। एक से ज़्यादा थ्रेड्स जो होते हैं रॉ सिल्क के, उसमें वीविंग और निटिंग के लिए जो रॉ सिल्क है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइज़, कलर और लेंथ और क्वालिटी के हिसाब से, और फिर इसको सोक कर दिया जाता है वार्म वाटर, जिसमें सोप भी होता है और ऑयल भी होता है, और इसके बाद में सुखा दिया जाता है और फिर इससे बोबिन में भर दिया जाता है।